ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ریئیکشن تو نہیں دیا میں نے اس پہ، تو صہیب چودھری کی ویڈیو تھی، تو اس میں وہ بتا رہے تھے ایک بھائی کہ کیا پتہ، بہت خطرناک بات، بہت بڑی بات، بہت جھٹکا دینے والی بات، کیا پتہ کہ ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے، آئے ہوئے جو مسلمان تھے حملہ آور، ان کے خوف کی وجہ سے، ہندو تھے سب، ان کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہو؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے ڈر کے ہمارے اسلام قبول کیا ہو؟ مطلب بہت خطرناک بات، بہت ہی حقیقت پسندانہ بات کر گیا وہ شخص۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ ہے تو سبھی کچھ ہے۔ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو ہے اٹیک آن مزمل قریشی آن دا روڈ، بگ فائٹ، نو ون کین کم فار ہیلپ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 30 صدی جس حکمران نے حکومت کی اس کا نام بتاؤ۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ محمود غزنوی۔ یار میں اب تم سے مزید بات کرنے نہیں چاہتا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ الگ تقسیم ہو چکے ہیں، تقریباً 1 ارب یہ مسلمان بنتے ہیں، اگر یہ اکٹھے ہوتے تو یہ کتنی بڑی طاقت ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا؟ لڑائی کروائی گوروں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، کشمیر کا تنازع درمیان میں چھوڑ کے، اور یہی پھر انڈیا اور مسلمان اور پاکستان جو ہیں، پاکستانی جو ہیں، یہ انہی گوروں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سمجھوتا کراؤ، ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کراؤ۔ انہوں نے لڑائی اس لیے کروائی کہ تاکہ ان کی چودراہٹ قائم رہے۔ اور بیسیکلی کیا سمجھتے؟ کیا اسپیس ایجنسیز کی میں بات کروں گا، آپ کو پتا اسپیس ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ پتا، الف بے بھی پتا ہوتی ہے آپ کو اسپیس ایجنسی کا، تو آپ یہ سوال کرتے ہی نا، پہلے اس دھرتی کو تو ٹھیک کرو، اوپر اسپیس پہ جانا چاہتے ہو؟ بر صغیر پر دوبارہ حکومت کر کے امریکہ اور چین نہیں ہوگی سپر پاور، پھر بر صغیر پر مسلمان حکومت کریں گے، اور بر صغیر پوری دنیا کی نمبر 1 پاور ہوگی نا۔ یہ ہے کہ پاکستان ایجوکیشن ہے۔ یار تم بڑے غیر منطقی آدمی ہو، تمہیں میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، تم چھلانگ لگا کے جا پڑھتے ہو۔ اگر ایجوکیشن، سر ایجوکیشن از دا بیسک تھنگ۔ سنو، آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اپنی عوام کو کیسے قائل کی؟ نمبر 1 سر آپ ایسے بات کو منوا نہیں سکتے نا، ایک منٹ میری بات سن لیں سر، میری بات سن لیں سر۔ گائز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میری بات کو آدھی چھوڑ کر چلے گئے۔ برے صغیر سے پہلے کی اگر بات کریں تو وہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، وہاں پر سارے کے سارے علاقے میں ہندو قابض تھے۔ اگر یہ سر مجھے جواب دیتے تو وہ ہندو بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہماری پہلے حکومت تھی برے صغیر کے اندر، مسلمانوں کو ہم یہاں پر حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ یہ تو جنگ کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ یہ سر میری بات آدھی چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیر خیریت، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی سر میں بھی ٹھیک۔ نام آپ کا سر؟ نواز۔ سر کیا کرتے ہیں؟ آپ جیسے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سر، زبردست۔ سر سوال پوچھ لوں میں اپنا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں سر جی پوچھیں سر۔ کہ برے صغیر پر کتنے سینکڑوں سال مسلمانوں نے حکومت کی، ہاں جی سر۔ اور پھر مسلمانوں کو، برے صغیر کے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان الگ، انڈیا میں مسلمان الگ، بنگلہ دیش میں مسلمان الگ، اور پاکستان میں مسلمان الگ۔ یہ 4 حصوں میں جو اتنے مسلمان الگ تقسیم ہو چکے ہیں، تقریباً 1 ارب یہ مسلمان بنتے ہیں، اگر یہ اکٹھے ہوتے تو یہ کتنی بڑی طاقت ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ ہوتا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ بر صغیر پہ مسلمانوں نے حکمرانی کیا، مغل مسلمان تھے، انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اب مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو مقبوضہ کشمیر والے اور انڈیا کے مسلمان اور بنگلہ دیش کے مسلمان، یہ انڈیا کے ہندو کے ماتحت ہیں، اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی IMF کے ماتحت ہو جاتے ہیں، کبھی CIA کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ تو حالات تو یہ ہیں۔ اور اگر یہ بر صغیر کے مسلمان 4 حصوں میں جو تقسیم ہے، اگر یہ اکٹھے ہوتے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتے۔ سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج امریکہ کے جزیرہ، کینیڈا کے جزیرہ، جتنے بھی دنیا میں ملک ہے سب ایک ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں تو یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟
ये बात समझ में आपको नहीं इसलिए आ रही है कि बिल्कुल जो आपने बात की है बिल्कुल इलॉजिकल गैर मंतकी बात है। सर मैं लॉजिक की तरफ आ रहा हूँ, आप बताएं ना, मैं लॉजिक की तरफ मैं तो बता रहा हूँ, मतलब जिन ममालिक का आपने नाम लिया है उनका आपस में क्या ताल्लुक है। मैंने जो नाम लिया है, बर सग़ीर पहले मुत्तहिद था, ये चारों जो 400 मुसलमान तकसीम हो चुके हैं ये मुत्तहिद थे और ये इकट्ठे हो के इन्होंने बर सग़ीर पर हुकूमत की है। अंग्रेज़ों ने सिर्फ 100 साल हुकूमत की है, जी सर, मुसलमानों ने तो कितने 150 कितने सैकड़ों साल हुकूमत की है। जी सर, इसीलिए तो उन्हें इन मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ताकि हिंदू भी इनके बॉस बन जाएं और जो गोरे इनको छोड़ के गए हैं वो भी इनके बॉस बने रहें। अब बगैर गौर करो कि वो जो मीर तकी पीर ने, मुझे लगता है कि जो शेर कहा था वो इन्हीं के लिए कहा था कि वो वो क्या शेर है यार, उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लड़ाई करवाई गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, कश्मीर का तनाज़ा दरमियान में छोड़ के, और यही फिर इंडिया और मुसलमान और पाकिस्तान जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, ये उन्हीं गोरों को कहते हैं कि हमारा समझौता कराओ, हमारा कश्मीर का मसला हल कराओ। उन्होंने लड़ाई इसलिए करवाई कि ताकि उनकी चौधराहट कायम रहे। और बेसिकली क्या समझते, कैसा समझते हैं हिंदुस्तान को, क्या अलग होकर अच्छा किया या गलत किया हमने? मैं ये समझता हूँ कि 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम हैं ये मुत्तहिद हो जाएं, और जैसे माजी में मुसलमानों ने बर सग़ीर पर हुकूमत की है इसी तरह मुत्तहिदा बर सग़ीर पर ये मुसलमान जो 4 हिस्सों में तकसीम है ये बर सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करें। बांग्लादेश के मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, ये 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम है ये मुत्तहिद हो जाएं और ये मुत्तहिदा बर सग़ीर पर हुकूमत करें। ये एक सुन लें, हाँ सर सुन लें, आपने 4 अभी बताया कि जो बरे सगीर था, बरे सगीर के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। आज देखेंगे, आज जिन जिन मुल्कों का आपने 4 हिस्से बताए, चारों तरफ के मुसलमान कमज़ोर हैं विद पाकिस्तान। क्यों कमज़ोर हैं? वो इसलिए, हैरत वाली बात है, जब आप तकसीम हो जाएंगे, आप 4 साथी इकट्ठे खड़े होंगे तो आपकी ताकत होगी। आप 4 अलग अलग खड़े होंगे तो आपके मुखालफिन आपको एक एक करके मारेंगे। इसलिए कमज़ोर हैं, इसलिए उनकी कोई औकात ही नहीं है। मुत्तहिद हो जाएं तो जैसे बर सग़ीर पर पहले हुक्मरानी की थी मुसलमानों ने, अब दोबारा भी हुक्मरानी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट ही गलत है डिवीज़न वाला। डिवीज़न तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम, पहले मज़हब के नाम पे तकसीम हो गई, फिर लिसानियत के नाम पर तकसीम हो गई। अब आपने देखा ना कि आपने देखा क्या 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 हुआ कराची में, पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग लोग कितने लड़ते रहे। सारी आपकी बात से दफा करता हूँ। सर अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, स्पेस एजेंसीज की मैं बात करूंगा। आपको पता है स्पेस एजेंसी क्या होती है? अगर आपको ये पता, अलिफ बे भी पता होती है आपको स्पेस एजेंसी का, तो आप ये सवाल करते ही ना, पहले इस धरती को तो ठीक करो, ऊपर स्पेस पे जाना चाहते हो। यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि ये पता है आपको कि कितने लाखों बंदे जो है भूखे रात को सोते हैं, पता है आपको? और पाकिस्तान में सो रहे हैं, वो हिंदुस्तान ने भेजे, वो रशिया ने भेजे, जो दुनिया के अंदर अपने नाम को बनवा लिया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मुल्क में लाखों लोग भूखे बेरोजगार हैं और तुम स्पेस पे जाने के चक्कर में हो। ये जो फैंटेसी आपकी, ये उस फैंटेसी से बाहर निकलें। ये आपकी फैंटेसी ऐसी ही है जो फैंटेसी बरे सग़ीर को तकसीम करने वाली थी। मैं आपको बताता हूँ, चले मेरी फैंटेसी वैसी होगी, मैं आपकी राय को रद्द नहीं करता। सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम भूख की जंग लड़ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं बरे सगीर में हम एक थे, वही इंडिया स्पेस में जा रहा है अपने हालात को बेहतर करने के बाद। टेस्ला कंपनी वहां पर आ गई, टेस्ला के सीईओ इंडियन बन गया। दुनिया की आज इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले ले, वो इंडियंस हैं वहां पर। कहाँ पर है पाकिस्तानी? तो यही तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आ रही कि इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो फिर हमने 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के हमने हासिल क्या किया कि ना पूरी दुनिया में इज्जत, ना यहाँ कुछ खाने पीने को। कि यानी ये हर रोज़ इशू ये चल रहा है, टीवी खोलें, अखबार खोलें कि पाकिस्तान
दिवालिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कहता है कि मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, दूसरा कहता है नहीं अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं बेहतर तरीके से दिवालिया होने से बचा लेता। भाई इशू तो दिवालियापन है ना, ये है कि पाकिस्तान। एजुकेशन है। यार तुम बड़े गैर मंतकी आदमी हो, तुम्हें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम छलांग लगा के और जा पढ़ते हो। अगर सुनो, एजुकेशन सुन लो। सर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। सुनो। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपनी आवाम को कैसे कायल करेंगे मुझे- कि आपने किस हुक्मरान को चुनना है। ये बात मेरी गौर से सुनो, एजुकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम बात करने के माहिर हो, इस बात ज़ाया करने के माहिर हो, इसलिए मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बरे सग़ीर पर आधी सदी जिस हुक्मरान ने हुकूमत की उसका नाम बताओ। तुम्हें ये भी नहीं पता? महमूद गजनवी। यार मैं अब तुमसे मज़ीद बात करने नहीं चाहता कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शहनशाह अकबर मुग़ल ने आधी सेंचुरी बरे सग़ीर पर हुक्मरानी की और वो चिट्टा अनपढ़ था। तुम्हें सुनो, और तुम्हें इतना भी नहीं पता। शऊर होना एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी एक छोटा सवाल पूछता हूँ सर, आप अपनी अना को थोड़ा नीचे रखकर थोड़ा सा डाउन कर लें, कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा कि जो एटम्स होते हैं इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? अगर आप अक्लमंद आदमी होते, आप ज़िंदगी में कभी मुझसे मिलने से पहले किसी एक अक्लमंद इंसान से भी अगर आप मिले होते तो आपको ये पता होता कि आधी सेंचुरी अकबर ने इसलिए हुक्मरानी बरे सग़ीर पर की थी क्योंकि वो लोगों को मुत्तहिद करना जानता था। अगर आपकी तरह के लोग तकसीम दर तकसीम के शौकीन होते तो फिर वो 5 दिन भी हुक्मरानी न कर सकता। सर मैं तकसीम के हक में हूँ ही नहीं सर। सर मैं तो कह रहा हूँ, अब यार देखें, आज आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सर हमारे जवाल के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। सर आज अगर हम इतने मजबूत होते तो आज हम मुत्तहिद होते, आज हमें कोई अलग ना कर रहा होता। आज हमसे ज़्यादा पावरफुल ज्यूज़ है, यहूदी हैं। यहूदी को हम कहते हैं मानते नहीं, आज उनके टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं। आप जहाँ पर मुझसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मोबाइल बनाया हुआ यहूदी का, माइक जिसको आप बार बार पकड़ रहे हैं ये बनाया हुआ यहूदी का। हम फिर क्यों, किस जुबान से कहते हैं और हम क्यों कहते हैं कि हम दुनिया से स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं? क्यों हैं हम? कैसे, कब हैं, कहाँ से होंगे? शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल का कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और जो कुछ मैंने अभी कहा तुम उस पर कायल हो गए हो। तुम अब समझ गए हो कि तकसीम दर तकसीम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम समझ गए हो मेरी बात कि बरे सग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और बरे सग़ीर के मुसलमानों को पूरे बरे सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करके अमेरिका और चीन नहीं होगी सुपर पावर, फिर बरे सग़ीर पर मुसलमानों को बरे सग़ीर पर मुसलमान हुकूमत करेंगे और बरे सग़ीर पूरी दुनिया की नंबर 1 पावर होगी, नंबर 1। सर आप ऐसे बात को मनवा नहीं सकते ना। एक मिनट मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें सर। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी बात को आधी छोड़कर चले गए। बरे सग़ीर से पहले की अगर बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत थी, वहाँ पर सारे के सारे इलाके में हिंदू काबिज थे। अगर ये सर मुझे जवाब देते तो वो हिंदू भी तो कह सकते थे कि भाई हमारी पहले हुकूमत थी बरे सग़ीर के अंदर, मुसलमानों को हम यहाँ पर हुकूमत करने नहीं देंगे। ये तो जंग की तरफ बात चली जाती है। ये सर मेरी बात आधी छोड़कर वो जा रहे हैं। अगर सर में थोड़ी सी भी आया तो सर वापस आएँ। सर आ जाए वापस, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आ जाए वापस, आ जाए। मेरे सवाल तो आपने सुन लिया होगा, अब मुझे इसका जवाब देते जाइए। आपको इतना भी नहीं, आप इतने कम इल्म है, आपको ये भी नहीं पता कि आधी सेंचुरी हुक्मरानी बरे सग़ीर पर शहनशाह अकबर ने की थी। उससे पहले हिंदुओं ने की थी। अगर हिंदू कहेंगे कि भाई हमारी हुक्मरानी बरे सग़ीर के अंदर सारी हुक्मरानी हमारी है तो हम उन्हें क्या वापस देंगे? पूरे बरे सग़ीर पर हिंदुओं ने कभी हुक्मरानी नहीं की, आपको पता ही नहीं है इस बात का। बरे सग़ीर पर सिर्फ एक हुक्मरान ने इतना तवील अरसा हुक्मरानी की है। सर अखंड भारत किसे कहते हैं? वो अखंड भारत उनकी एक फैंटेसी है, कभी भी बरे सग़ीर हिंदुओं के मातहत नहीं रहा। ये आप थोड़ी तारीख़ पढ़े ना, आपकी तारीख़ का नॉलेज तो ये है कि आपको अकबर का नहीं पता क्या अकबर ने कितने अरसा हुक्मरानी की, देखे ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फैंटेसीज़ हैं उनमें से निकलिए, तकसीम दर तकसीम के फार्मूले पर जाएंगे। पहले मज़हब को पोलिटिसाइज़ करके अंग्रेज़ों ने बरे सग़ीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की। 1947 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को अंग्रेज़ों ने कहा था कि
बंगाल कलकत्ता साथ ले जाओ और बंगाल के वज़ीर आज़म बन जाओ। यानी वो अंग्रेज़ 1947 में बरसग़ीर को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते थे, लेकिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कहा नहीं, आई वांट पाकिस्तान। तो उस वक़्त अंग्रेज़ अपने सूबे में कामयाब ना हुए मंसूबे में, तो बरसग़ीर सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम हो सका और 1971 में उनका मंसूबा कामयाब हो गया। और को हमने खुद तकसीम करवाया और अपनी मर्जी से तकसीम करवाया। बात सुन तो लो ना, फिर उनका मंसूबा कामयाब हो गया और 1971 में बरसग़ीर 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। और ये आपकी बात तक बिल्कुल सही है कि आप सही कह रहे हैं कि बरसग़ीर को हमने ख़ुद तकसीम किया। ये बेगैरत जनरल याह्या और बेगैरत जनरल नियाज़ी और उनके साथी और उनके वो जो टोला था, उन्होंने वहाँ जाके जो सरेंडर किया था ढाका में, तो उन्होंने खुद ही नया मुल्क बांग्लादेश बना दिया था। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने खुद ही बरसग़ीर को 3 हिस्सों में तकसीम करके हमाकत की है। शुक्र है आपको अकल आ गई है। थैंक यू। बरसग़ीर जिंदाबाद, सल्तनत मुग़लिया जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं कहूँगा मज़ा आ गया मज़ा आ गया। इनकी कन्वर्सेशन, इनकी गपशप, इनकी फ़ाइट सुन के मज़ा आ गया। ज़बानी फ़ाइट हुई है, हाथापाई नहीं हुई है। और एक चीज़ जो मैंने अब ऑब्ज़र्व की इस वीडियो में कि हमारा जो है अच्छा, एक चीज़ तो है कि बंदे को जो भी नॉलेज थी वो एक तरफ की थी। जो भी बंदा था उसको जो नॉलेज थी, जो बातचीत थी, जो पढ़ाया गया है, वो 100% वही चीज़ें जो हमारी एजुकेशन में, जो हमारे निसाब में, जो हमारी टेक्स्ट बुक में, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने शुरू से हमें सिखाते आ रहे हैं। पाक मुसलमान डिवाइड हो गए, मुसलमान ये हो गए, मुसलमान आज बहुत तरक्की करते, मुसलमान अलग हो गए हैं। मतलब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए कोई ना कोई तो जवाज़ हो ना। आज मैं नाकाम हूँ तो मैं पता क्या कहूँगा, अरे फ़लाने ने मेरा साथ नहीं दिया, अरे फ़लाने ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरी नहीं सुनी, मैं आज ये करना चाहता था, मैं आज वो हमारे अंदर एकता ही नहीं था मेरे भाइयों में, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया। एक बंदा इंडिविजुअली बहानेबाजी करेगा, नाकाम शख्स। मुसलमान कौम नाकाम होने के बाद बहानेबाजी करेगी, हम एक होते हैं, मेरे भाई हम जहाँ पर भी हैं, जितने भी हैं, उस हद तक तो हम तरक्की करें। जो आपको एक टुकड़ा मिल गया, जो आपको एक धरती दे दी गई, जो आपको एक पार्टीशन हो गया तो हो गया। अब उसको लकीर पीटेंगे हम, उसका रोना रोते रहेंगे, नहीं पार्टीशन हो गया, हम बर्बाद हो गए पार्टीशन। तो ये होता है। हमारे एक मिसाल दी जाती है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा। मिसाल के तौर पे मुझे अगर नाचना नहीं आ रहा तो मैं बहाना करूँगा यार ये आंगन ही टेढ़ा है। हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, पता नहीं आप क्या ये दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो ये इन भाई साहब की जो मेंटलिटी थी ये थी। अच्छा, एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट मैं इनकी बातों से शायद आपने नोट किया या नहीं किया, बहुत बड़ा बिग पॉइंट वो ये कि हमारे यहाँ बर्रे सगीर की हिस्ट्री ही शुरू होती है बाबर से। यानी मिसाल के तौर पे जब मुसलमानों की हुकूमत थी हज़ारों साल, सैकड़ों साल, तो बस वही दौर था, खूबसूरत था, वही हिंदुस्तान था। तो उससे पहले यहाँ पे जिनबूत थे, उससे पहले यहाँ पे कौन लोग बसते थे, वहाँ कौन लोग हुकूमत करते थे, किन का राज चलता था, कितने टेम्पल्स थे, कितने हिंदू थे। तो कितने हिंदू क्या थे, टोटली हिंदू थे। उसकी वजह ये है, इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 1400 साल पहले अरब में, अरब से फिर इस्लाम फैला, यहाँ तक आया। ये एक वीडियो में देख रहा था, रिएक्शन तो नहीं दिया मैंने उस पर, तो सुहेब चौधरी की वीडियो थी, तो उसमें वो बता रहे थे एक भाई कि क्या पता, बहुत ख़तरनाक बात, बहुत बड़ी बात, बहुत झटका देने वाली बात, क्या पता कि हमारे वालिदैन ने, आबाओ अजदाद ने, आए हुए जो मुसलमान थे हमलावर, इनके खौफ की वजह से, हिंदू थे सब, उनके खौफ की वजह से इस्लाम कबूल किया हो। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने डर के हमारे इस्लाम कबूल किया हो? मतलब बहुत ख़तरनाक बात, बहुत ही हकीकत पसंदाना बात कर गया वो शख्स। तो पूरी वीडियो मैंने नहीं देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, तो उनकी ये बात मुझे ठक करके लग गई। दूसरी चीज़ ये है कि इन भाई की जो नॉलेज है वो वही तक है, वही नॉलेज है कि हम एक होते हम। अच्छा, इनकी नॉलेज वही कि बस मुसलमान जो थे वही इस देश के हिंदुस्तान था, बड़े सगीर था, और वो दोबारा लौट के आ सकता था, ये डिवाइड नहीं होते, ये नहीं होते।
اچھا ایک چیز ہے, ہمارے جو مزمل بھائی ہیں یہ جیسے باتیں پلٹ رہے تھے تو انہیں غصہ آ رہا تھا, وہ بہت نیچر کے مجھے سخت لگ رہے تھے, ان کی جو داڑھی, ان کے جو بال, ان کی جو چہرے کے خد و خال تھے, میں آپ کو سچ بتاؤں بہت ہی غصے والے لگ رہے تھے. گھر کے اندر شاید یہ گھر کے اندر جب انٹر ہوتا ہوگا نا یہ شخص, سانس سوکھ جاتی ہوگی ان کے بچوں کی, ان کے بچے کونے میں دبک کے بیٹھ جاتے ہوں گے, سانس نہیں لیتے ہوں گے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور ہمارے ابو یا ہمارے چاچو یا جو بھی ہوں گے یہ ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, شاید ہو سکتا ہے نیچر کے اچھے ہوں, لیکن جیسے ہی مزمل بھائی ان کی بات کاٹ رہے تھے تو وہ ایک دم سے یوں انہیں دیکھ رہے تھے, تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ایک فوکس کرنے والے, چیزوں کو ڈیٹیل سے سمجھانے والے, کسی کو ڈانٹنے والے, کسی کی غلطی یا کسی کوئی ان سے اگینسٹ بات کرے تو اس کو جھاڑ دینے والے لگ رہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سخت نیچر کے لگ رہے تھے, ان کو انہی کی لاجک سے سمجھانا چاہیے تھا. اور اچانک ہی جیسے مزمل بھائی بات چینج کر رہے تھے تو وہ غصہ ہو رہے تھے, تو انہی باتوں کو پکڑ کے انہی باتوں سے لے کے آگے بات کی جاتی. میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کے اس ویڈیو کے اندر پہنچ جاؤں اور ان بھائی سے میں بات کروں. میرا دل کر رہا تھا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہو, اچھا ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کون تھے ہندوستان میں, اس سے پہلے کس کی حکومت تھی, کون لوگ رہتے تھے, اسلام تو بعد میں آیا تھا. شاید میرے خیال میں وہ چپ ہو جاتے. اچھا اکبر والی بات تو میں کہوں گا انہوں نے پکڑ ہی لی کہ آپ کو یہ نالج نہیں ہے, تو ان کو جو 4 چیزوں کا پتہ ہے اس نالج کو لے کے بھی اپنے آپ میں یہ بڑے پھولے نہیں سنوارے تھے, بڑے ہی ایک طرح سے خوش فہمی کا شکار تھے کہ مجھے بڑی نالج ہے, اکبر نے آدھی صدی حکومت کی. تو خیر بہرحال بڑا مزہ تھا, بڑا مزہ آیا, اور نکل کے سامنے آئی ایک ٹپیکل پاکستانی مسلمان کی نیچر. تو فائٹ نہیں ہوئی, میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی کب ہاتھا پائی ہوتی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بہت زبردست ویڈیو تھی. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.